Good morning students. Today we are going to learn designing of steel and RCC structure, semester 5th, course code 22502, unit 3, analysis and designing of single reinforced section. I am Pallavi Mhase, the conducting lecturer from Devi Mahalakshmi College of Polytechnic, Titwala. Stress strain grade of steel and their stress strain behavior. Typical stress strain curve for the mild steel, cold work or deformed bar are shown in figure 3.1. The mild steel has defined L point and the plastic strain may be extended up to the strain 0.15. The cold work and high strain deformed bar do not have defined L point and characteristic strength referred to the 0.2% proof stress. The Steel Authority of India said the SAIL has introduced the new type of high-strength microalloy structure, the being its market as the SILMA. This steel has a definite L point similar to the mild steel. भी इधर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको. यू कैन सी द ग्राफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. देयर इज माइल्ड स्टील एंड high strength cold work deformed bar means HYSD bar. The horizontal line is indicated the strain. You can see that 0.002, 0.004 and vertical line is denoted stresses 100, 200, 300, 400. अभी आप mild steel में देखोगे there is a specific L point. Behind the L point the curve of horizontal straight line increase the strength and indicated but stress remains constant. मीन्स क्या, अभी माइल्ड स्टील का आप ये देखोगे ग्राफ देखोगे तो वो 0.15 के बाद मतलब पहले तो स्ट्रेट लाइन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद वो क्या हो जाता है हॉरिजॉन्टल. जो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम एल्ड पॉइंट. तो एल्ड पॉइंट माइल्ड स्टील का कितना है 0.15 एंड हाई स्ट्रेंथ बार में अभी क्या होगा there HYSD bar there is no specific L point. अभी HYSD बार वो कर्वेचर में दिख रहा है आपको, वहाँ पे L point आपको दिख रहा है क्या, नहीं. लेकिन the characteristic strength is considered to be the proof strength of 0.002. therefore ultimate strength of steel is ESU. The characteristic strength refers to 0.2% the proof strength. तो माई HYSD बार का कितना आएगा 0.2. Partial safety factor for material. The possibility of deviation of strength of material, the deviations of the sectional dimension, accuracy of the calculation procedure and risks to life of economic consequences. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल हम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में क्या होता है कि हम जो कंसिडर करते हैं कि मटेरियल स्ट्रेंथ इतनी आएगी, मतलब फैक्ट्री से जो मटेरियल आता है स्टील हो कंक्रीट हो, तो हम उसका 25 अगर कंसिडर करते हैं, लेकिन सम माइनर मिस्टेक इट विल बी समटाइम्स इज 24, 23. वी कांट गिव गेट द गारंटी ऑफ दैट. सो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मटेरियल स्ट्रेंथ कम आए. डेविएशन ऑफ द सेक्शनल डायमेंशन, मतलब हमने जो डायमेंशन जो कंसिडर किए हैं उसका भी चेंजेस हो सकता है, उसकी वजह से भी मतलब जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए वो नहीं मिल सकती. एक्यूरेसी ऑफ कैलकुलेशन प्रोसीजर, कभी माइनर मिस्टेक की वजह से अगर कैलकुलेशन प्रोसीजर से वजह से हमारी स्ट्रेंथ नहीं आ पाई तो भी रिस्क में जा सकता है, डेंजर जोन में जा सकता है सेक्शन. इसकी वजह से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. रिस्क फॉर द लाइफ ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, अभी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी रिस्क है. पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, unusual increase in load beyond that used for the driving characteristics value. Unforeseen stresses are redistribution, the inaccurate assignments of the effect of loading. Importance of the limit state is considered. In the limit state there is a partial safety factor for load under the limit state of collapse and partial safety factor for under the limit state of serviceability. कभी कभी क्या होता है कि जो लोडिंग हमने कंसिडर की है, मतलब अगर हमने कॉलेज बिल्डिंग लिया तो कॉलेज बिल्डिंग हम जब डिज़ाइन कर रहे थे तब हमने 1 लैब अगर नॉर्मल लैबोरेटरी के लिए कंसिडर करी, लेकिन बाद में अगर वो कॉलेज बुक लाइब्रेरी हो गई तो उसके ऊपर जो लोडिंग है वो चेंजेस हो गया.
तो जो स्ट्रक्चर है उसने वो डेड लोड उतना मतलब उसको लेना चाहिए ना। अभी हमने कंसिडर किसके लिए किया था, नॉर्मल लाइब्रेरी के लिए, लेकिन वो बुक्स लाइब्रेरी हो गई तो डेड लोड ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि कभी कभी मतलब इनएक्यूरेटेड असाइनमेंट की इंक्रीजिंग लोडिंग बिहाइंड द यूज़ फॉर ड्राइविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Next, the partial safety factor. The concept of limit state acknowledges that there can be variation in both loads and material strength. Thus, the safety of the structure depends upon each of the two principal design factors, that is load and material strength, which are not depend upon each other. Hence, different safety factor, one for the load and other for the material strength, are used. Because of each of the two safety factor contributed partially to safety are known as a partial safety factor. Partial safety factor for material strength. The partial safety factor for material strength is introduced to account for the constructional fault, bad workmanship and supervision, the interior material, etc. The design strength is obtained by dividing the characteristic strength by partial safety factor for material strength, that is F suffix d is equal to F by gamma m. The F suffix d design strength, F is equal to characteristic strength, and gamma m is equal to partial safety factor for material strength. Refer as to 3.3 for the subdivisional serviceability. अभी मटेरियल स्ट्रेंथ पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द मटेरियल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अभी लिस्ट द टेबल। मटेरियल कंक्रीट लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए अलग है, सर्विसबिलिटी के लिए अलग है। तो कंक्रीट के लिए कोलैप्स में 1.5 है और सर्विसबिलिटी के लिए 1 है। स्टील में 1.15 है कोलैप्स के लिए और सर्विसबिलिटी में 1 है। तो सिर्फ आपको कोलैप्स के ध्यान में रखनी है, कंक्रीट के लिए 1.5 एंड स्टील के लिए 1.15 एंड सर्विसबिलिटी के लिए बोथ में 1। Partial safety factor for load. Partial safety factor for load is a gamma f, is a load factor which is when multiplied by the characteristics load given by the design. The capital F suffix d is equal to gamma f into capital F. Capital suffix f d is equal to design load. Gamma f is equal to partial safety factor load and f is equal to characteristics load. Partial safety factor for the load taken into account the variation of load due to the unforeseen increase in the load, construction inaccuracies, different loading combinations, secondary effect and types of limit state. अभी पार्शियल कैरेक्टरिस्टिक्स लोड और पार्शियल सेफ्टी डिज़ाइन लोड, अब आपको ये वर्ड्स अभी जब आप एग्जांपल सॉल्व करोगे तब आपको दिखाई देगा कि जो एग्जांपल में कभी कभी दिया होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लोड इज़ 12 पॉइंट न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जब आप डिज़ाइन करते हो स्ट्रक्चर तो आपको क्या लेना पड़ता है, डिज़ाइन लोड। तो क्या करना होगा आपको, गामा एफ से मल्टीप्लाई बाय जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लोड दिया है उसको मल्टीप्लाई करना होगा, और हम आगे एग्जांपल में देख ही लेंगे। लेकिन ये याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक्स लोड मतलब जो नॉर्मल लोड हमें दिया जाता है स्ट्रक्चर पे वो, और डिज़ाइन लोड मतलब जब हमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है वो डिज़ाइन लोड। अभी डिज़ाइन द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर एज पर एज IS 456 एंड 2000, द लोड कॉम्बिनेशन, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। DL मतलब क्या है, डेड लोड, LL मतलब लाइव लोड, VL मतलब विंड लोड। अभी डेड लोड प्लस लाइव लोड रहेगा लोड कॉम्बिनेशन, तो डेड लोड कितना रहेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में 1.5 एंड लाइव लोड में रहेगा 1.5। अभी विंड लोड तो उसमें है नहीं, वापस डेड लोड प्लस विंड लोड रहेगा तो 0.5 to 0.9 एंड विंड लोड 0.15। डेड लोड, लाइव लोड प्लस विंड लोड इज इक्वल टू सब में 1.2 ही रहेगा। अभी सर्विसबिलिटी में डेड लोड प्लस लाइव लोड 1, डेड लोड प्लस विंड लोड 1, डेड लोड प्लस लाइव लोड एंड प्लस विंड लोड रहेगा तो डेड लोड 1, लाइव लोड 0.8 एंड विंड लोड 0.8। अभी आपको ये याद नहीं रखने की ज़रूरत, कभी कभी ये दिए जाते हैं, और अगर मतलब जहाँ पे एग्जाम के टाइम पे आपको बता दूंगी कि कैसे याद रखना है ये। Partial safety factor for concrete and steel. Partial safety factor in limit state, there is a limit state material concrete और steel. Ultimate serviceability concrete में कितना रहेगा 1.5 and steel में 1.15.
डिफ्लेक्शन में क्या रहेगा 1 एंड क्रैकिंग में 1.3, कंक्रीट में एंड स्टील में 1. It is in subsequent chapter. Now only the limit state method will be adopted for analysis of designing of RCC component as per as recommendation of IS 456-2000. Types of load on structure. All the structure are designed for the worst combination of dead load and live load or superimposed load. Wind load and seismic load are also be considered in a design whether the applicable loading on structure is considered as per IS 875-2000. डेड लोड. डेड लोड यूनिट लोड ऑफ बिल्डिंग. अभी एसी शीट रहेगी 6 mm थिक टू 7 mm थिक, तो 0.12 to 1.3 किलोन्यूटन पर mm स्क्वायर. ब्रिक्स ब्रोकन एंड कॉमन रहेगी तो 14.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड रहेगा तो 14.4 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. कंक्रीट प्लेन रहेगा तो 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड रेनफोर्स रहेगा तो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. आपको ये याद नहीं रखना है, एग्ज़ाम में दिया होगा, मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बोल रही हूँ. ग्लास ऑफ लाइम कंक्रीट इज़ 27 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड 19.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. मोटार सीमेंट एंड लाइम सीमेंट 20.8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड लाइम 16.18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. प्लास्टर में सीमेंट रहेगा 20.8 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, लाइम 17.6 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. स्टील का 78.5 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. स्टोन रहेगा, फिर वाटर का 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. यूनिट वेट फॉर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. सीलिंग प्लास्टर 0.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फिनिशिंग प्लास्टर 0.2 पर 1.25 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फ्लोरिंग में 25 mm टाइल्स विदाउट स्क्रीडिंग रहेगा तो 0.20 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 25 mm टाइल्स पर स्क्रीडिंग रहेगा तो भी सेम है. बिटुमिनस मैकेडम रहेगा तो 0.50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 10 mm थिकनेस एंड 75 के लिए 0.22 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ब्रिक बैट कंक्रीट रहेगा तो 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पार्टीशन वॉल रहेगी तो 100 mm के लिए 1.95 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. टिम्बर रहेगा, स्क्रेडिंग प्लास्टर रहेगा तो 1.1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जीआई शीट्स रहेगा तो 1.15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. एसी शीट के लिए 0.12 to 0.156 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. वॉलिंग ब्रिक मैसनरी में 19.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. स्टोन मैसनरी रहेगी तो अशलर, लाइम, मार्बल, अभी स्टोन स्टैंड स्टोन ड्राई, इनका मीटर क्यूब में आएगा. होलो ब्लॉक रहेगा तो 100 mm थिक के लिए 1.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 200 mm थिक के लिए 2.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 300 mm थिक रहेगा तो 3.4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रूफिंग के लिए एसी शीट रहेगा तो 0.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जीआई शीट के लिए 0.2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मैंगलोर टाइल्स विथ बैटन्स रहेगा तो 0.65 किलोन्यूटन पर मीटर. Lie or superimposed load. Lie or superimposed are taken in according to the IS 875 and 1987. The different values are given in table 3.5. अभी आपको याद रखना है. तो फ्लोर लोड रेसिडेंशियल के लिए 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑफिस के लिए 2.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, शॉप फ्लोर एंड क्लासरूम 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड असेंबली हॉल 7.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉर हाउसेस, बुक स्टोर्स, लाइब्रेरी 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्टेयर्स रेसिडेंशियल 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पब्लिक 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रूफ लोड्स एक्सेस टू बी प्रोवाइडेड 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सेस नॉट प्रोवाइडेड 0.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रूफ बिल्डिंग्स आर यूज्ड फॉर incidental assembly designed for the minimum live load 0.4 kilonewton per meter square for the more if required. Limit state of collapse and assumptions. ये एग्ज़ाम में आता है 5 मार्क्स के लिए, तो आपको ये पॉइंट्स वाइज याद रखना है.
The plane section remains plane before and after bending. Strain is very linearly through the out of the depth section. Section line is always perpendicular to the axis of beam before and after bending. Maximum strain in concrete is considered as a point 0035. The crack in concrete take place at the strength of 0.335, and further it is assumed that concrete lose its strength. The tensile strength of concrete is neglected. The stress strain curve of the concrete can be considered that the any shape of rectangular, parabola, and etc. The stress in a steel will be calculated from the respective stress strain curve of the steel. Ultimate strength of steel should not be less than is equal to 0.87 Fy Es plus 0.002. There should be the perfect bonding between steel and concrete. फर्स्ट प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, मतलब अगर कोई सेक्शन है, अगर कोई बीम का सेक्शन है, हम कट करते तो उसका न्यूट्रल एक्सिस और जो सेक्शन है वो प्लेन ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा. तो पहला क्या है, प्लेन सेक्शन रिमेंस प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग. आपने ए लाइन पे लिखे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक पॉइंट के लिए. Maximum strain in a concrete consider as 0.335, 0.0035. अभी द क्रैक इन मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट कितना हम कंसिडर करते हैं, 0.0035. The third is tensile strength in concrete is neglected. कंक्रीट क्या लेता है, सिर्फ compression strength लेता है. कॉम्प्रेशन टेंसाइल लेता है क्या कंक्रीट, नहीं. तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में क्या रहेगी, निग्लेक्टेड. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द कंक्रीट कैन बी कंसिडर दैट एनी शेप ऑफ रेक्टेंगुलर एंड पैराबोला. जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगा कंक्रीट का वो एनी शेप रहेगा, रेक्टेंगुलर भी रह सकता है, नहीं तो रेक्टेंगुलर पैराबोला रहेगा, हाफ रेक्टेंगुलर रहेगा और बाद में पैराबोला रहेगा. The stress in steel will be calculated from the respective stress strain curve and strain. The ultimate strength of steel should not be less than is equal to 0.87 Fy upon Es plus 0.002. There should be the perfect bonding between steel and concrete. ओके इसमें से आपने 5 भी लिखे, अगर एग्जामिनेशन एग्ज़ाम में पूछे जाते तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है. टर्म्स यूज्ड इन द लिमिट स्टेट मेथड. Neutral axis. Neutral axis is the axis at which the stresses are zero in the section. The area above and below it is as a subjected compressive and tensile stresses respectively. It is an imaginary axis which is divided the section in two zones, that is tension and compression. In this diagram you can see the N and A. N is indicated as the neutral axis. The upper portion of the section is a compression and lower portion of the section is a tension. You can see that there is a reinforcement bar. Next is the breadth is B denoted. D, the small d is the effective depth, and the middle of the reinforcing bar to the bottom of the section, मतलब जो बीम रहेगा उसका क्या रहता है, इफेक्टिव कवर. और पूरा मतलब पूरा सेक्शन का रहेगा, क्या रहेगा, कैपिटल डी. ओवरऑल डेप्थ मैंने क्या बोला, डी. द वर्टिकल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टॉप टू बॉटम ऑफ एक्सट्रीम फाइबर इज नोन एज द ओवरऑल डेप्थ. इफेक्टिव डेप्थ इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर्स एंड सेंटर ऑफ द रेनफोर्समेंट ऑफ द स्टील. मतलब जो इफेक्टिव कवर है वो अब हमने अगर इफेक्टिव कवर माइनस करके जो बार की डायमीटर है उसका हाफ क्या मिलेगा हमें, इफेक्टिव डेप्थ. इफेक्टिव कवर क्या रहेगा, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम बॉटम फाइबर्स and centroid of the reinforcing steel. Clear cover, it is a distance between extreme bottom fibers and nearest face of the reinforcing bar. नेक्स्ट लेक्चर में हम जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे आए हैं और सिंगली रेनफोर्स बीम के सम कैसे सॉल्व करने हैं वो देखेंगे. और मैंने
साइली को और जयेश भोईर को ईमेल किया था कि DSR का ग्रुप निकाल के उसमें मुझे ऐड करो, क्योंकि मुझे आपको जो सम्स देने हैं वो सब प्रेजेंटेशन पर पॉसिबल नहीं होंगे, तो मुझे उसके PDF आपको सेंड करने हैं, तो आप एक ग्रुप बना के उसमें मुझे ऐड कर दो। थैंक यू।